We will start from the some important questions. First question is, this is an equation which representing x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 is equal to 0. You have to determine the center and radius of this representation. Actually, this is an equation of a circle. You don't know that it is equation of a circle, and general equation of a circle is like that: x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This given equation, we have to compare this given equation with our general equation, and with the help of this general equation we have to find out the values of g, f and c. Now 2g is will be equal to 8, 2f will be equal to 10 and c equal to minus 8. From here g will be 4, f is minus 5 and c is minus 8. And as you know that the coordinate of center are center coordinates in this type of ellipse. Yes, in this type of equation of a circle the center coordinate are minus z and minus f. So center coordinate will be minus 4 and minus 5. This will be the, this is an equation of a circle whose center is minus 4 and minus 5. So to find out the radius of a circle, the radius of circle will become equal to root g square plus f square minus c. G square, value of g is 4, means 4 square plus 5 square minus, and value of c is minus 8. We have to put here minus 8. So this will become 16 plus 25 plus 8. So in this way we will get the value of the radius. These are the coordinate of a center, and this will become radius of our given equation of a circle. So this will become 49. This will become 49 and this is 7. Radius of circle will be 7. So next question, we will discuss about the equation of a circle. We have to frame an equation of a circle. अभी आपको जनरल इक्वेशन गिवन थी, इससे हमने सेंटर और रेडियस की वैल्यू निकाली है. अभी आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देंगे और उसकी हेल्प से आप जनरल इक्वेशन बनाएंगे, सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे. सेंटर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 8 and minus 6 and passing through the points. These are the center coordinate and center is passing through the coordinate. We have to find the equation of a circle whose center is this and passing through the point. Passing points are 5 and minus 2. These are the passing points. And with the help of this information, we have to find out the equation of that circle whose center coordinates are 8 and minus 6 and passing points is 5 and minus 2. Let this is the passing point and this point is P and this is the coordinate of center C. You know that this will be the radius, CP will be the radius of this circle, and with the help of distance formula you can find out the CP. So with the help of distance formula, CP will be 5 minus 8 square
plus -2 -6, that will become +6 whole square. This will become 3, and 3 3s are 9, and 4 to 16, and this will become 25, and means CP will be 5. वैसे तो यहाँ ±5 आना है, like because we are taking a distance, so we will take a positive quantity. CP will be 4. CP will be 5. Means if the center of a circle are given and points are given, the radius will be 5. Now, as we know that, what will be the required equation? Required equation of circle. What will be the required equation of the circle? These are the center coordinates: x minus 8 whole square plus y minus -6. This will become +6 is equal to radius square. Radius square means 5 square. क्योंकि हमें पता है कि मैं आपको डिस्कस किया था कि अगर आपके सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके एच के हैं एंड दिस इज द रेडियस, तो जो सर्कल की जो सेंटर फॉर्म होगी, दैट सेंटर फॉर्म में भी h माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्म हियर. तो फाइंड आउट द वैल्यू. या तो आप इसको सेंटर फॉर्म की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दिस विल बी योर आंसर. If you want to expand it, you will find your general equation of your circle. This will become x square plus 8 square minus 16x plus y square plus 6 square plus 12y is equal to 25. And solve this equation, and that will be the general equation of your circle whose center points are given and passing point is given. Today we are doing different type of questions from the complete chapter, from the different logics. So this will be the general equation of your circle. The next question and next concept. अभी आपको हमने दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. एक में तो आपको सर्कल का जनरल इक्वेशन गिवन थी, उसकी हेल्प से हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस फाइंड आउट की. दूसरे में क्या था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और फिर हमने उसकी हेल्प से, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जनरल इक्वेशन फ्रेम की. अब नेक्स्ट देखिए, आपका इस तरह से पासिंग पॉइंट्स अगर आपको गिवन हो तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. We have to find the equation of a circle whose passing points are. यहाँ पे passing points given है. एक passing point is 2 minus 2. Next passing point is 3 4, and these are the two passing points and has its center on the line. अभी कहते हैं आपको एक लाइन गिवन है x plus y is equal to 2. x plus y is equal to 2. Find its center and radius. You have to find the center and radius. Given information के अकॉर्डिंग आपका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है. इस क्वेश्चन में these are the passing point and center lie on this line. Now we have to find the center and radius, because general equation of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is our general equation of a circle. And you know that passing points are 2 and minus 2, 3 and 4. So if we take a passing point 2 and minus 2, this will become, this general equation will become 2 square plus minus 2 square plus 2g 2 plus 2f minus 2 plus c is equal to 0. This will become 4 plus 4 plus 4g minus 4f plus c is equal to 0. 4g minus 4f plus c, this will become 8 is equal to 0. Now अब इसको आप मार्क कर लीजिए. This is your first equation. In the same way, if we take the passing point 3 4,
इट मीन्स दैट दिस पासिंग पॉइंट विल सेटिस्फाई द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अभी हमें जी, एफ और सी हमारे लिए सारी वैल्यू अननोन है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अभी तो हमें सेंटर भी फाइंड आउट करना है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे, माइनस जी एंड माइनस एफ, एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आपके पासिंग पॉइंट जब आपको ये थे तो आपने जनरल इक्वेशन में पुट किए, यहाँ से एक इक्वेशन फ्रेम हो गई आपके लिए। नाउ पासिंग पॉइंट्स आर 3, 4। if the passing points are 3, 4, what will be the general equation of your circle? 3 square plus 4 square plus 2g 3 2f4 plus c is equal to 0. This will become 9 plus 16 plus 6g 8f plus c equal to 0. 6g plus 8f plus c plus 25 is equal to 0. This is your second equation. Now there is two, you know that these are the two values, and third equation can be find out with the help of this information. This is a line which is passing through the center, means center coordinate will satisfy this equation. So we have to put the value here, minus g plus minus f is equal to 2, means minus g minus f is equal to 2, and you can write in this form, g plus f is equal to minus 2. This is your third equation. Now solving these two first, second and third equation, you will find out the value of f and g and c. तो f जो g और f की वैल्यू होगी दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, और रेडियस निकालने के लिए आप रेडियस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये सॉल्व कैसे करना है, दिस इज द मैटर ऑफ 10th क्लास। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस मेथड। तो आपको मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि इसमें करना कैसे है, कि पहले सी रिमूव करने के लिए आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट सेकंड में से, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से एक नई इक्वेशन फ्रेम होगी जो कि जी और एफ की फॉर्म में होगी, और उस जी और एफ की इक्वेशन में की हेल्प से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें तीन आपके लिए अननोन वेरिएबल आ रहे हैं, जी, एफ एंड सी। यहाँ भी आपका जी, एफ एंड सी। जब आप फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे या सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां से एक नई इक्वेशन फ्रेम होगी आपके लिए। अब इसमें से देख लीजिए कैसे होगा, 4g माइनस 4f प्लस c प्लस 8। इस इक्वेशन में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इज g प्लस 8f 25 is equal to 0. Subtract this equation, 4f plus c plus 8 minus 6g minus 8f minus c minus 25 is equal to 0. C will be cancelled out with each other. 4g and minus 6g, we will get minus 2g, and here minus 4f and minus 8f minus 12f and 8 minus 25, you will get 16 minus 16 is equal to 0. Sorry, 16 is 17. 17. So with the help of this equation, this will be your fourth equation, and with third and fourth, you will using the elimination method, you will find the value of f and g. तो मेन हमारा जो मेन इसमें मकसद है वो ये है कि हमें इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उसको रिवाइज करें, और वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम देखें। किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जिसमें जर्नल इक्वेशन दी थी, हम इस जर्नल इक्वेशन की हेल्प से वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल। सेकंड हमने डिस्कस किया इफ सेंटर एंड सर्कल आर गिवन, वी हैव टू फ्रेम ए जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस इक्वेशन में हमें सेंटर भी अननोन है हमारे लिए, और हमें सिर्फ पासिंग पॉइंट्स गिवन है, और एक अनदर इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास एक लाइन है, वो लाइन इस तरह की लाइन है कि वो सेंटर से पास कर रही है, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इस इंफॉर्मेशन का हमने यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर से पास कर रही है। ये एक सर्कल की जनरल इक्वेशन हमने लेट की, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड इफ दिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट
तो पासिंग पॉइंट की हेल्प से हमने एक नई इक्वेशन फ्रेम की। फिर अगर ये इफ दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4, we frame a new equation, and after solving these two equation we frame another equation which is in the form of g and f with this given condition was that line is passing through the center। तो इसकी हेल्प से हमने एक इक्वेशन ये फ्रेम की। अब एलिमिनेशन मेथड लगाइए और एफ और जी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आपको एक नई एफ और जी की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अगर रेडियस निकाले तो या तो आप इन पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपको रेडियस निकालनी है ना, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर पासिंग, सर्कल इज पासिंग थ्रू द दीज पॉइंट्स, या जो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे एफ और जी की वैल्यू यहाँ से जो भी आएगी, और इसको सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7/10 एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी 13/10। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करेंगे, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के रेडियस निकाल लीजिए, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आप पहले सी निकालिए यहाँ से। तो रेडियस निकालने के लिए फिर वही आपको सी की रिक्वायरमेंट होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, फिर वहां से आपको सी भी निकालना पड़ेगा। पहले एफ और जी की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से सी निकालेंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप इनका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के इसका डिस्टेंस निकाल दीजिए, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने आज सर्कल के तीन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर पैराबोला। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले हम इसमें रिवाइज कर देते हैं आपकी पैराबोला की। इन केस ऑफ पैराबोला वी डिस्कस 4 टाइप ऑफ पैराबोला: right handed parabola, left handed parabola, upward parabola and downward parabola. Actually in our NCERT exercise we are discussing standard type of parabola. If we are discussing this type of parabola whose word these points are 0 0, this is a parabola y square is equal to 4ax, and we can say that this is right handed parabola. Symmetry of axis is x axis and this is a y axis. This parabola is symmetric about its x axis. Equation will be y square is equal to 4ax. Focus point will be a and 0. a0 will be foci point. अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की दे दे, अब यहाँ पे ध्यान रखना हमारे जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है ये 0 0 है। अगर ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 0 0 ना हो, कुछ और वैल्यू हो, तो हमारा पैराबोला किस टाइप का होगा? सपोज कीजिए अब ये पैराबोला, अभी जितने भी हमने पैराबोला बनाए हैं उनके फोकस को हमने अब तो एक्स एक्सिस पे लिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिया है, या सेकंड टाइप से हमने ये लिया है तो इसको हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लिया है। This is your parabola about the negative x-axis. Focus is point is minus a0. Coordinate of vertices are 0 0. Okay, and this parabola is called left-handed parabola. Equation of this parabola is y square is equal to minus 4ax. Got it? This is your upward parabola, whose coordinate of vertices are also 0 0. This is called x square is equal to 4ay. And next one is downward parabola, 4 type of parabola. In all these type of parabola, vertices coordinate are 0 0. This is the common thing that we have discussed in our exercise. Coordinate are 0, vertices coordinate are 0 0 0 0. This is 0 0, and here is also 0 0. Our downward parabola, upward parabola, right-handed parabola, left-handed parabola. ऐसा कोई केस जिसमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 0 0 ना हो, उस केस में पैराबोला की सिचुएशन क्या बनेगी? अब हम उसको इस
यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई ये कहे हमसे कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 2 3 है, व्हाट वी हैव टू डू? अब x axis और y axis, if we are drawing x and y axis, this is the point 1 2 3, 2 3 point will be near about value this. तो हमारा, अब अगर हमने कहा कि ये इस तरह का पैराबोला है और वो राइट हैंडेड पैराबोला है, तो राइट हैंडेड पैराबोला तो इस टाइप से बनेगा। मीन्स आपकी उस इक्वेशन क्या होगी कि y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x minus 2. This will be our equation of the parabola whose vertices coordinate are 2 and 3. अब यहाँ पे सारे के सारे वर्टिसेस कोऑर्डिनेट हैं, हम इसके साथ जनरल फर्स्ट टाइप के पैराबोला के साथ इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे वर्टिस के कोऑर्डिनेट क्या थे? 0 0। तो ये समझिए कि y में से क्या सब्ट्रैक्ट था? 0, और यहाँ x में से भी 0 सब्ट्रैक्ट था। तो जनरली हमने इस फॉर्म को y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 0। तो दिस इज आवर पैराबोला। अब जब आपके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाते हैं, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइप ऑफ पैराबोला। क्योंकि हमारे जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे अभी तक हमने स्टैंडर्ड टाइप ऑफ पैराबोला ही किए। बट it is important to know that if vertices become different from the 0 0, what type of equation will frame? This type of equation will become. तो हमने ये सब क्वेश्चन किए हैं इसमें डिस्कस। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके, कोई भी आप बना लीजिए इस टाइप का पैराबोला है, अगर आप इसके वर्टिसेस कोऑर्डिनेट 0 0 ना होगे, कुछ और पॉइंट हो, तो क्या बनेगा? सपोज कीजिए हम इसी को बना रहे हैं और हमें इस पैराबोला को शिफ्ट करना है इस साइड पे, व्हाट विल हैपन? अगर हमें इसे शिफ्ट करना है तो क्या होगा शिफ्टिंग के केस में? अब अगर हम चाहते हैं कि ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स ये बने, यानी कि दिस मीन -1 एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और पैराबोला इस तरह से बने, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाए? -1 एंड 0। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ तो है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो यहाँ क्या होगा? y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax minus, what we have to subtract from the x? We have to subtract -1 from the x. x में से -1 subtract करेंगे, that will become plus. This is the जनरल इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड पैराबोला। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन बन जाएगी इस पैराबोला के लिए, जिसके वर्टिसेस कोऑर्डिनेट माइनस। So we will discuss some important question related to this. एनसीईआरटी हमने किया, अब इक्वेशन कैसे बनानी है, कैसे फ्रेम करना है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं। First type of question we will discuss from here. The parabola is u। अब आपने क्या होगा, इस टाइप के पैराबोला में आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3x। दिस इज योर इक्वेशन, and we have to find focus, directrix and length of retrosectum of conic represented here. ये किस टाइप का पैराबोला है आपका? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। This type of parabola is, I am writing this equation again due to visibility. So y square is equal to 2√3x। आपने सबसे पहले तो कंपेयर किया वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 होंगे, क्योंकि y में से भी 0 ही सब्ट्रैक्टेड है और x में से भी 0 सब्ट्रैक्टेड है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, 4a is equal to 2√3 and a is equal to 2√3/4 and a is equal to √3/2. And you know that this is the value of a. With the help of this value, you can write down its focus. What will be the focus? Focus coordinate will be a0, means this will become √3/2 0. In the same way,
Directrix. What will be the equation of directrix? And you know that if this is your parabola, directrix what will be the directrix? This is a right-handed parabola. What will be the equation of directrix? Foci points are given f0, a0. These are the foci point. वर्टिसेस से फोकस की जितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए डिस्टेंस है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, इतनी डिस्टेंस आपको पीछे आ जाना है और उस पॉइंट से ये पॉइंट लगाना है. अब ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो इसलिए ये पॉइंट हुआ आपका a0. तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? -a0. दिस पॉइंट विल बी -a0. इतनी ही डिस्टेंस पीछे आपका जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट से पास करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स. दिस इज आवर डायरेक्ट्रिक्स. So this is a line which is passing through the point -a and 0. In this question, value of a is √3/2. So this coordinate will be -√3/2 and 0. So equation of directrix will become our directrix. Directrix will become x is equal to -√3/2. Either you can write this x plus √3/2 is equal to 0. This is the equation of our directrix. So with the given information, we can find out the value of axis. What will be the axis? Because this parabola is symmetric about the x-axis. So what is the equation of x-axis? Equation of x-axis is y equal to 0. This is the equation of x-axis. So with the help of this information, we can find out all the values. एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन होती है, यू हैव टू फाइंड अदर वैल्यूज लाइक एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिसेस, 0 0, all these information of your conic section. And next type of question is that in this type of question आपको पॉइंट्स गिवन होते हैं, उसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना होता है? पॉइंट्स की हेल्प से आपको पैराबोला की इक्वेशंस फ्रेम करनी होती है. उसके बाद हम इलिप्स को कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहेंगे. इलिप्स और हाइपरबोला में कल मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था अच्छा सा, कि वहां प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है. एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलिप्स and 2 types of hyperbola. General equation of ellipse is actually this is a general equation of our ellipse. X minus x1 square by a square plus y minus y1 square by b square is equal to 1. This is the general equation of your ellipse. Now question is what is the value of x and y? अब हम ellipse जब भी ड्रॉ करते हैं, हमने फर्स्ट टाइप का ellipse बनाया, तो उस ellipse को बनाने में दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ इलिप्स, और इस इलिप्स पे हमने कहा कि इसके सेंटर क्या आने हैं? 0 0. वी आर सेइंग दैट सेंटर ऑफ दिस इलिप्स आर 0 0. देयर विल बी द 2 फोकस, this focus f and this focus is f dash. Coordinate of focus are a0, so yes, ae0, and these are minus ae0. E is the eccentricity. These are the vertices. 2 point of vertices are a0 and this is minus a0. अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके 0 0 है, तो आपका ये इलिप्स क्या बन जाना है? यहाँ पे जो x1 और x2, x1 और y1 की जो वैल्यू लिखी है, these are the center coordinates. Center coordinates are x1 and y1. If center coordinate are 0 0, then this ellipse will become x minus 0. We have to put the center coordinate 0 0. So this will become x square plus a square y square plus b square is equal to 1. So if we want to shift this ellipse in the right या left side, center के coordinate तो change हो जाने हैं.
अब यहाँ सेंटर क्या आपका 0 0। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम लेके चलना चाहते हैं 1 और यहाँ पे लेके चलना चाहते हैं हम 0, सपोज कीजिए वी वांट टू मेक द सेंटर कोऑर्डिनेट इन दिस वे, ellipse will shift in such a way that now center coordinate, this is the x-axis. Still now this ellipse is also symmetric about the x-axis, like the previous this standard ellipse. But here center coordinates are 1 0 and here center coordinates are 0 0. What will be the what will be the equation of ellipse? जब भी इक्वेशन इलिप्स की बननी है, a और b की वैल्यू तो चाहे कुछ भी हो, वो तो एक डिफरेंट इशू है, बट आई वांट टू क्लेरिफाई यू दैट हमें x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कोऑर्डिनेट आर 1 and 0, so this will become x minus 1 a square plus y minus 0 square, y minus 0 का स्क्वायर लिखिए या फिर आप इसको y square लिखिए, इट डजंट मैटर, y square by b square is equal to 0. This is your इक्वेशन ऑफ दिस ellipse. अब यहाँ जो भी a की b की वैल्यू और a की वैल्यू आएगी वो हम निकाल के उसमें पुट कर देंगे, वो एक डिफरेंट इशू है. मैं आपको सिर्फ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें इस जनरल इक्वेशन से एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे फ्रेम हुई, आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है. एक्चुअली में यहाँ x में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रखा है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट हुए हैं, y में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है, सेंटर के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट हुए हैं. तो दिस इज द सेंटर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स. और ये फर्स्ट टाइप का इलिप्स बनेगा. सेकंड टाइप का इलिप्स क्या होगा, सेंटर वाला कॉन्सेप्ट सेम रहना उसमें भी, बस ये है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ इलिप्स में वो इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्स एक्सिस and that is symmetric about its y-axis. So in next type of hyperbola was, next type of conic section was hyperbola. There is also a two type of hyperbola. और मैम ने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें इसेंट्रिसिटी निकालने का एक वे होता है. इसमें इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, b square is equal to a square 1 minus e square. With the help of this formula we will find out the value of b e या फिर वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, जो भी आप निकालना चाहते हैं इसके लिए गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से. नेक्स्ट इज हाइपरबोला, जो हमने कल भी डिस्कस किया था. हाइपरबोला में इलिप्स में ये डिफरेंस होता है कि आपको यहाँ पे इलिप्स के केस में इक्वेशन में प्लस आता है, हाइपरबोला के केस में यहाँ माइनस आता है. बाकी सारी चीजें आपको सेम रह जानी है. इफ यू आर डिस्कसिंग एन इलिप्स, if you want to make an equation of an hyperbola, that plus sign will become minus. ये भी आपका माइनस होगा. This is the first type of hyperbola. अगर आप यहाँ पे भी उसकी इक्वेशन, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ will be totally different. ये इलिप्टिक फिगर थी आपकी, और हाइपरबोला की फिगर कैसे बनने वाली है, that will be this type of figure. This is this type of figure. This hyperbola is also symmetric about its x-axis, and this is symmetric about its y-axis. So we discussed, we have complete our conic section. तो आप इसको complete करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट पेज. जब भी होगा तो हम उसको अपना लीनियर इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे, और अपने डाउट है वो पूछ सकते हैं. डाउट सेशन के लिए भी हम अलग से डाउट रख सकते हैं. तो हाइपरबोला जब तक टाइम होता है तो मैं आपको हाइपरबोला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो और दे देता हूँ दोबारा से, कि दिस हाइपरबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक होने का मीनिंग क्या है कि फोकस के पॉइंट भी यही रहेंगे आपके. दिस विल बी द पॉइंट ऑफ फोकस एफ एंड दिस इज एफ डैश. अब इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, यहाँ डिफरेंट फॉर्मूला रहेगा. इसेंट्रिसिटी, हाउ विल फाइंड आउट द इसेंट्रिसिटी, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1. अगर आपको b a और e के अंदर कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है, यू विल फाइंड आउट विद दिस हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला.
दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ योर फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपरबोला। अगर आप सेकेंड टाइप की हाइपरबोला को डिस्कस करना चाहते हैं तो सेकेंड टाइप की हाइपरबोला में आप ध्यान रखें, यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट्स आपका क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स है। अगर आप सेकेंड टाइप की हाइपरबोला को डिस्कस करना चाहते हैं उसमें y का कोऑर्डिनेट्स आपका, y यहाँ पे नेगेटिव है, वहां पे क्या होगा, कल भी मैंने आपको बताया वाई स्केयर बाई ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1, साइन माइनस ही रहना है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपरबोला एंड दिस इज योर सेकंड टाइप ऑफ हाइपरबोला। यहाँ सेकंड टाइप ऑफ हाइपरबोला में अब लिखने का एक वे है, इसकी कोई इसको एक्स के एक्स वाले कोएफिशिएंट को आगे लिखता है तो माइनस डाल के भी आप लिख सकते हैं, इट इज देयर इज नो मैटर। आप इसको बी स्केयर बाय एक्स स्केयर बाय बी स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय ए स्केयर इक्वल टू 1 आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ता है। तो अब इस हाइपरबोला की अगर हम बात करें तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा एंड दिस हाइपरबोला इज सिमेट्रिक इन दिस वे। डायरेक्ट्रिक्स की जहां तक बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे आपके, कोऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा इस हाइपरबोला में, डायरेक्ट्रिक्स आपका यहां से एक पॉइंट पास करता है, एक लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, a line passing through this point, these are the vertex coordinates, this is the line, that line is called directrix of an hyperbola। in the same way directrix, इसमें भी आपका डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से रहेगा, so these will be the coordinate of directrix। so इस तरह की इक्वेशंस को आप यूज करके इनके प्रॉपर्टी को याद करके अपने कोनिक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। in the next period we will discuss equation of our hyperbola। okay students, सर बच्चों की कोई क्वेरीज है तो आप इसको ऑन कर दीजिए प्लीज।